Hello everyone, welcome you again in chapter number 4, that is the structure of atom. As we have seen in previous period, that is the electron, proton and neutron discovery done by different scientists. Who discovered electron? Correct, J.J. Thomson. Who discovered proton? Goldstein, very good. Who discovered neutron? James Chadwick. Is it clear? Proton, positive charge particle, electron, negative charge particle, and neutron, neutral in nature, no charge. Even though we have seen that proton as well as neutron, they occupy inside the nucleus, and electron, they revolve around the nucleus. In previous period, we have seen about the J.J. Thomson model. He compared his model with food item, that means plum pudding or watermelon, and he discovered about the electron. But because of lack of experimental evidence, his theory as well as his model was failed, even though he had given that electron information, but the model whatever given by him was not succeed. Anyway, let us continue about the another model that is known as the Rutherford model of atom. Now in 1911, Hans Rutherford, a scientist from the New Zealand, overturned the Thomson atomic model by his gold foil experiment. रुथरफोर्ड ने क्या किया? 1911 में न्यूजीलैंड के साइंटिस्ट ई रुथरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें ही टुक गोल्ड फॉइल. उन्होंने क्या लिया? एक गोल्ड फॉइल लिया जिसमें नियर अबाउट 1000 एटम थे. बहुत पतला सा गोल्ड फॉइल लिया. लेट अस सी हियर हाउ ही डिड हिज एक्सपेरिमेंट. Rutherford's experiment, that means Rutherford's scattering experiment. Rutherford selected a gold foil as he wanted a very thin layer. The gold foil used by Rutherford was 0.004 millimeter in thickness, that is, the foil was about 1000 atoms thick. रुथरफोर्ड ने एक गोल्ड का फॉइल लिया, पतला सा फॉइल लिया. उसमें उसकी थिकनेस, जो फॉइल की थिकनेस थी, गोल्ड फॉइल की थिकनेस थी, बहुत ही कम थी. मीन्स व्हाट 4 × 10⁻³ मिलीमीटर बोला जाए या 4 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर की थिकनेस थी गोल्ड फॉइल की, जिसमें नियर अबाउट 1000 एटम थे. इन हिज एक्सपेरिमेंट, fast moving alpha particles, that means what, helium particles were made to fall on the thin foil. उन्होंने क्या किया? उनके एक्सपेरिमेंट में अल्फा पार्टिकल पास किए. किस में से? गोल्ड फॉइल में से. Now these alpha particles are helium ions with +2 charge. Their atomic mass is what? 4 unit. Hence the high velocity of the beam of alpha particle has a lot of energy. उन्होंने क्या किया? गोल्ड फॉइल में से अल्फा पार्टिकल, नथिंग बट हीलियम आयंस, जिसकी चार्ज क्या थी? 2, एटॉमिक नंबर 2 था और मास नंबर क्या था? 4 यूनिट था. ऐसे अल्फा पार्टिकल्स विथ हाई वेलोसिटी के साथ में एट बहुत एनर्जी के साथ में गोल्ड फॉइल में से उन्होंने पास किए. These particles were studied by means of the flashes of light they produce on striking the zinc sulfide screen. उन्होंने जो अल्फा पार्टिकल्स पास किए तो वो फ्लैश लाइट प्रोड्यूस करने लगे. कहाँ पे? स्क्रीन पे, जो कोटेड था किसके साथ में? जिंक सल्फाइड के साथ में. What he took that alpha particle he passed through the radioactive substance. From radioactive substance he passed the alpha particle through this gold foil, and this gold foil give that
जिंक सल्फाइड का राउंड शेप में एक स्क्रीन रखा गया सामने और वो कोटेड था जिंक सल्फाइड के साथ में, तो उसमें अलग अलग लाइट के फ्लैश आने लगे। नाउ दीज अल्फा पार्टिकल आर मच हैवियर देन द सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट इन द गोल्ड फॉइल। ये अल्फा पार्टिकल बहुत ज़्यादा हैवी थे कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एज वेल एज न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के कंपेयर में बहुत ज़्यादा हैवी थे और वो अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल में से पास किए गए। Hence he expected the alpha particle to pass through the gold foil with deflection and strike the fluorescent screen। उन्होंने क्या किया, एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन रखा सामने, जो स्पेरिकल राउंड शेप का ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन है, और यहाँ पे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में से, यहाँ पे लीड ब्लॉक था, उसमें एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लाइक यूरेनियम, थोरियम, दीज आर द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। फ्रॉम दैट ही पास द अल्फा रेस, या अल्फा रेस पास किए गए, मीन्स व्हाट, हीलियम आयन विथ हाई स्पीड एज वेल एज हाई एनर्जी के साथ में अल्फा पार्टिकल पास किए गए ये गोल्ड फॉइल में से। नाउ हियर ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स पास किए गए, ये अल्फा पार्टिकल विथ हाई एनर्जी और हाई स्पीड के साथ में स्ट्राइक हुए ये गोल्ड फॉइल में। ये पतला सा गोल्ड फॉइल है जिसकी थिकनेस जस्ट नाउ वी हैव सीन इज व्हाट 4 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर। इतना बहुत ही पतला थिन गोल्ड फॉइल लिया गया जिसमें 1000 एटम किसके थे, गोल्ड के थे। थिकनेस बहुत ही कम थी, उसमें से अल्फा पार्टिकल पास किया गया और सामने एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन रखा गया जिसको कोटिंग किया गया था जिंक सल्फाइड के साथ में। नाउ ये जो स्क्रीन है इसमें लाइट का डिफ्लेक्शन होने लगा, एंड थ्रू व्हेन ही पास दिस अल्फा पार्टिकल विथ हाई स्पीड एज वेल एज हाई energy, then what he observed, that observation done is what, quite unexpected. Now expectation, if we say explanation based on this Rutherford's gold foil experiment, so it look like this way। यहाँ पे ये गोल्ड फॉइल है, इसमें ये एक एटम, 2 एटम, 3, 4 like this way, these are the near about 1000 atoms were there। गोल्ड फॉइल बहुत पतला था एंड यहाँ पे अल्फा पार्टिकल पास किए गए, तो व्हाट ही ऑब्जर्व कि मोस्ट ऑफ जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो सीधे स्ट्रेट डायरेक्शन में विदाउट एनी डिफ्लेक्शन ऐसे सीधी स्ट्रेट डायरेक्शन में जाने लगे, एंड फ्यू ऑफ दैट अल्फा पार्टिकल्स दे deflected at a major angle and some of that deflected at a minor angle, and some of that, very few of that deflected at minor angle as well as very few of that they deflected at a major angle. That means large deflection and as well as a small deflection observed by few of that alpha particles. Only few, that means only one of the alpha particles bounce back in the reverse direction. He observed that एक ही अल्फा पार्टिकल, सपोज 12,000 अल्फा पार्टिकल्स थे पास किए गए थे, तो उसमें से ओनली वन ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स टर्न बैक इन द सेम डायरेक्शन। सो ही ऑब्जर्व सम statement from that observation done by this scientist, that Rutherford postulated that atom must be contain large empty space as most of that alpha particles pass through it without getting deflection। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि ऐसा कुछ पूरा होलो है, एटम क्या है, एम्प्टी स्पेस है, मीन्स एटम में होलो एटम जैसा है कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वो स्ट्रेट डायरेक्शन में स्पेस है, जिसकी वजह से अल्फा पार्टिकल कैसे विदाउट एनी डिफ्लेक्शन पास्ड अवे फ्रॉम इट, मीन्स सीधे की सीधे डायरेक्शन में गए। क्यों? बिकॉज एटम इज होलो। ही ऑब्जर्व फ्रॉम दैट एक्टिविटी। Then second observation done by him is some alpha particles were deflected by the foil through small angle, that means minor angle, while some were deflected through very large angle. So he
Observe that few of that alpha particles get deflected at minor angle and few of that get deflected at a major angle. Rutherford concluded that positively charged particle in atom must be concentrated in a very small space. उन्होंने क्या कंक्लूड किया कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो है वो स्मॉल स्पेस जो सेंटर में है वहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है, जिसकी वजह से कुछ अल्फा पार्टिकल्स माइनर एंगल में डिफ्लेक्ट हुए और कुछ मेजर एंगल में डिफ्लेक्ट हुए. And out of 12,000 particles, only one of the alpha particles went deflected through 180, showing that full rebounds. उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, ओनली एक ही अल्फा पार्टिकल, अगर 12,000 टोटल पार्टिकल्स हैं उसमें से, तो एवरी 12,000 पार्टिकल उसमें से एक अल्फा पार्टिकल 180 एंगल पे बाउंस बैक हुआ. दैट मीन्स व्हाट, स्ट्रेट डायरेक्शन में, जहाँ से वो पास किया गया था वापस वहाँ पे ही वो बाउंस बैक हुआ. Thus he came to concluded that the positive charge of the atom and most of the mass of the atom is concentrated in very small volume within the atom. इसमें से उसने क्या कंक्लूड किया, उन्होंने कंक्लूड किया कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, जो पॉजिटिव चार्ज एटम है वो भी कहाँ पे है, सेंट्रल पोर्शन में है, और मास भी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड कहाँ पे है, वेरी स्मॉल, वॉल्यूम भी जिसका बहुत कम है, मास ज़्यादा है, और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है एट द सेंटर ऑफ द एटम फ्रॉम वेयर दीज अल्फा पार्टिकल्स गेट बाउंस बैक. दैट मीन्स वन अल्फा पार्टिकल्स फ्रॉम 12,000 बाउंस बैक into the reverse direction. Now Rutherford named these small space inside this atom as a nucleus of the atom or the atomic nucleus. तो रुथरफोर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट में इसे क्या फाइंड किया कि न्यूक्लियस एटम के सेंटर में एक हैवी मास वाला और बहुत ही कम वॉल्यूम वाला न्यूक्लियस है जो सेंटर पे लाई करता है. एंड वो न्यूक्लियस के बारे में सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दिया गया वो किसके थ्रू दिया गया, रुथरफोर्ड ने दिया. On the basis of these observation, Rutherford calculated that atomic nucleus is 10⁵ times smaller than the total area of the atom. That means जो एटॉमिक न्यूक्लियस है वो 10⁵ टाइम मीन्स व्हाट, 1 लाख टाइम स्मॉलर है टोटल एरिया ऑफ द एटम. सपोज 1 लाख एरिया है एटम की, सपोज वी आर कंसिडरिंग area of the atom is what, 1 lakh centimeter square, then the area of the nucleus is what, 1 centimeter square. means what है, न्यूक्लियस का जो एरिया है या वॉल्यूम जो बोला जाए वो 10⁻⁵ टाइम्स स्मॉलर है, 10⁻⁵ टाइम्स स्मॉलर है किसकी एरिया के कंपेयर में, एटम की एरिया के कंपेयर में. अगर एटॉमिक रेडियस एटम का कितना है, 1 लाख है, तो न्यूक्लियस का रेडियस कितना होगा, ओनली 1 रेडियस होगा. द रेडियस ऑफ एटम इज 10⁻⁸ सेंटीमीटर. लेट अस गिवन द एग्जांपल. अगर एटम का रेडियस 10⁻⁸ सेंटीमीटर है, देन द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज व्हाट, 10⁻13 सेंटीमीटर. तो यानी 5 टाइम्स न्यूक्लियस का रेडियस क्या होगा, स्मॉलर होगा कंपेयर टू रेडियस ऑफ एटम. तो न्यूक्लियस का वॉल्यूम बहुत ही छोटा है बट मास क्या है, बहुत ही ज़्यादा है. एटम का ऑलमोस्ट मास जो होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड कहाँ पे किया गया है, न्यूक्लियस में ही किया गया है, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल न्यूट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम है. तो that much information is given by the scientist Rutherford. So Rutherford mainly he had given information about the nucleus. Thus we can say that atom is relatively hollow with heavy nucleus at the center, and the electron are arranged around the nucleus possesses negligible mass. तो यहाँ पे क्या
बताया गया। साइंटिस्ट ने क्या इंफॉर्मेशन दिया? ही कंक्लूडेड बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन व्हाट ही से एटम क्या है, ऑलमोस्ट होलो नेचर का है, जिसमें हैवी न्यूक्लियस है सेंट्रल पोर्शन में, और उसके सराउंडिंग क्या है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, और पूरा न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस क्या है, हैवी है, बट सामने जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास क्या है, निग्लिजिबल है कंपेयर्ड टू दिस प्रोटॉन एज वेल एज अ न्यूट्रॉन। बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन ही फॉर्मुलेटेड द थियरी ऑफ एटम। यही ऑब्जर्वेशन के बेस पे उन्होंने क्या बताया है, एटॉमिक थियरी बताई। एटॉमिक थियरी बताई जिसमें ही हैड गिवन द conclusion as well as the model based on a planetary model of atom given by this scientist. So let us see about the Rutherford atomic model. Finally he concluded based on this result alpha particle scattering experiment Rutherford ने क्या conclude किया? Rutherford put forth his atomic model. An atom contain positively charged particle, charged central called nucleus of the atom. All the mass of atom is concentrated in the nucleus. उन्होंने क्या बोला? सेंट्रल पोर्शन है जिसमें न्यूक्लियस है और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कॉन्सेंट्रेटेड है, और होल मास एटम का ऑलमोस्ट कॉन्सेंट्रेट कहाँ पे किया गया है? सेंट्रल पोर्शन में। Electron of the atom revolve around the nucleus in fixed circular orbit. उन्होंने ऑर्बिटल स्ट्रक्चर दिया। These are the electron, they revolve around the nucleus. प्लैनेटरी मोशन, जैसे प्लानेट रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड, अलग अलग प्लैनेट्स सन के अराउंड, न्यूक्लियस सन के अराउंड जैसे रिवॉल्व करते हैं, द सेम वे व्हाट ही सेड दैट इलेक्ट्रॉन दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस. And finally, he concluded that the size of nucleus is many times smaller than the size of atom. Nucleus of atom is 10,000 times smaller than the atom. So that means what? Nucleus बहुत ही छोटा है, साइज बहुत ही कम है, और उसका मास क्या है? सबसे ज़्यादा है, और इलेक्ट्रॉन का जो मास है न्यूक्लियस प्रोटॉन के कंपेयर में बहुत ही कम है. सो फाइनली ही हैड गिवन द प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन. दैट मीन्स व्हाट? उन्होंने क्या बोला? मास इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस. ही हैड गिवन द प्लैनेटरी मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, smaller size in the nucleus, and revolution of the electron. These electron revolve in this orbit. तो जैसे प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, सेम वे दीज इलेक्ट्रॉन दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस. बट सम ड्रॉबैक कैन सीन इन हिज ऑर्बिटल थियरी. सो लेट अस सी व्हाट आर दे. ड्रॉबैक ऑफ रुथरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम. ना रुथरफोर्ड के मॉडल में जो ड्रॉबैक ऑब्जर्व किए गए, सो वो ड्रॉबैक क्या थे? दैट फर्स्ट मेन ड्रॉबैक इज व्हाट? ही कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम. उन्होंने ये कुछ एक्सप्लेन नहीं किया कि एटम कितना स्टेबल है. रुथरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन हाउ दिस मूविंग इलेक्ट्रॉन कुड रिमेन इन देयर ऑर्बिट. उन्होंने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया कि ये जो मूविंग इलेक्ट्रॉन है कैसे वो स्टेबल रहेंगे या कैसे मूव कर रहे हैं. उन्होंने कुछ फिक्स डिस्टेंस नहीं बताया. सिंपली ही सेड दैट इलेक्ट्रॉन दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस. एनी चार्ज पार्टिकल ड्यूरिंग दिस एक्सेलरेशन वुड बी रेडिएट एनर्जी, एंड व्हाइल रिवॉल्विंग इट would lose their energy, and finally they eventually into the nucleus. Finally they fall down on the nucleus. According to Maxwell theory, जैसे Maxwell theory में था, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से when चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व करते हैं अपोजिटली चार्ज पार्टिकल के सराउंड, तो फाइनली वो क्या करते हैं? एनर्जी लूज करते हैं. एनर्जी लूज करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ रेडिएशन.
And if we apply this theory, that means Maxwell theory, तो Rutherford's atomic model, fast moving charge particle, that means electron, they lose their energy continuously. Due to decrease in the energy, their speed will be go on decreasing and the electron will come closer to the न्यूक्लियस. इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, न्यूक्लियस के क्लोजर आ जाएंगे and electron would fall on the nucleus and atom will be should be collapsed, which is not true. As we know, atom is what, stable. atom अगर इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हो जाती है, तो फाइनली वो कहाँ पे, न्यूक्लियस के ऊपर गिर जाएंगे और वो इसके साथ स्ट्राइक करेंगे, विच इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज एटम इज़ वॉट, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, एटम स्टेबल है. तो यहाँ पे जो मैक्सवेल थियरी के हिसाब से बोला जाए तो यहाँ पे स्टेबिलिटी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए. दिस मीन्स दैट एटम would be highly unstable, but the matter is composed of the stable atom. As we know that matter is what, stable है, कोई भी मैटर है वो एटम से बना हुआ है और एटम क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, स्टेबल है. तो अकॉर्डिंग टू दिस थियरी he could not explain about the stability of atom. The major drawback of Rutherford atomic model was that it could not explain the stability of atom. ये उनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था. उन्होंने कुछ फिक्स डिस्टेंस नहीं बताया जिस डिस्टेंस में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं. उन्होंने खाली सिंपली ये बताया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सराउंडिंग मूव कर रहे हैं और जैसे जैसे मूव करते करते उनकी एनर्जी कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, तो वो कहाँ पे फॉल डाउन होगी, कहाँ पे, न्यूक्लियस के ऊपर. दैट मीन्स व्हाट, वो अनस्टेबल स्ट्रक्चर हो जाएगा. बट इट इज़ टोटली फॉल्स बिकॉज एटम क्या है, टोटली स्टेबल है और मैटर भी कंपोज किससे है, स्टेबल एटम के साथ में मैटर कंपोज है. तो यहाँ पे ये जो उनका मॉडल था, डायग्राम वट एवर ही हैड शोन बाय लूजिंग दिस एनर्जी was quite failed and a new structure given by the Niels Bohr scientist, new structure of atomic model जो दिया गया तो वो किसने दिया, नील्स बोर ने. So let us start about the another model of atom, that is what, Niels Bohr model of atom या Bohr's model of atom. Now Niels Bohr, उन्होंने एटॉमिक मॉडल दिया, स्फेरिकल मॉडल दिया. देन सेकंड थिंग, he had given 2-dimensional model. Nowadays 3-dimensional मॉडल बताया गया है एटम का, बट नील्स बोर ने काफ़ी कुछ लॉजिक लगा के एज वेल एज हेनरी मोसले दे इंट्रोड्यूस अबाउट द पीरियोडिक टेबल. तो पीरियोडिक टेबल में भी काफ़ी उनका योगदान है नील्स बोर का. सेम वे यहाँ पे भी स्ट्रक्चर ऑफ एटम या जो मॉडल दिया गया, स्टेबल मॉडल दिया गया नील्स बोर के थ्रू, और वो काफ़ी कुछ हद तक वो सक्सेस रहा. नील्स बोर रिवाइज द रुथरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल एंड पुट फॉर्थ द फॉलोइंग सजेशन. उन्होंने कुछ सजेशन यहाँ पे अपने एटॉमिक मॉडल में किए. नाउ नील्स बोर प्रपोज दैट इलेक्ट्रॉन possesses the specific amount of energy which allows them to revolve around the nucleus. उन्होंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी पोजेस करते हैं और वो कुछ इलेक्ट्रिकल सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं और वो सर्कुलर पाथ को उन्होंने नाम दिया शेल, ऑर्बिट या एनर्जी लेवल. What he said, these are the electron, they move around in a fix around the nucleus in fixed path, in fixed circular path, और उनको नाम उन्होंने क्या दिया, ऑर्बिट और शेल और एनर्जी लेवल. Now electrons are confined to these energy levels while revolving in these discrete orbit. The electrons do not radiate the energy. सभी इलेक्ट्रॉन की अलग अलग शेल में अलग अलग एनर्जी है
और वो रेडिएट नहीं करते हैं। हिंस दिस ऑर्बिट आल्सो नोन एज अ स्टेशनरी ऑर्बिट और स्टेशनरी शेल और द साइज ऑफ द ऑर्बिट इज स्मॉलर एंड इट्स एनर्जी। जैसे जैसे शेल की साइज़ कम है तो उसकी एनर्जी भी कम है। जैसे जैसे शेल की साइज़ या ऑर्बिट की साइज़ बढ़ती जाती है उसकी एनर्जी भी बढ़ती जाती है। तो एज वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट इंक्रीज प्रोग्रेसिवली। तो जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं तो अलग अलग शेल, सपोज फर्स्ट शेल को उन्होंने नाम दिया के शेल, तो उसकी एनर्जी कम है। सेकंड शेल को ही हैड गिवन द नेम एज अ एल शेल, तो उसकी एनर्जी क्या है, ज़्यादा है के शेल से। थर्ड शेल को उन्होंने नाम दिया एम शेल, दैट एनर्जी इज क्वाइट मोर देन द एल शेल एंड के शेल। उसके बाद में एन शेल, तो फोर्थ शेल को उन्होंने नाम क्या दिया, एन शेल, तो उसकी एनर्जी क्या है, एम शेल से, एल शेल से एंड के शेल से ज़्यादा होगी। तो अकॉर्डिंग टू हिज मॉडल what he said, as we move away from the nucleus energy of the orbit is what increases progressively. That's why that name is given. उनको ऑर्बिट को नाम भी उन्होंने क्या दिया, ऑर्बिट शेल और एनर्जी लेवल्स, मीन्स अलग अलग शेल की अलग अलग एनर्जी है। और जैसे दूर जाते हैं न्यूक्लियस से तो एनर्जी बढ़ती है, पास आते हैं तो एनर्जी क्या हो जाती है, कम होती है। बट ये अलग अलग डिस्टेंस पे फिक्स नंबर ऑफ शेल ही shown in his model. The transfer of the electron from one orbit to another orbit is always accompanied with the absorption or the emission of the energy. तो ये जो ट्रांसफरिंग होता है इलेक्ट्रॉन का, आइदर वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे या एनर्जी एमिट करेंगे, उसके ऊपर डिपेंड करता है। देन ओनली इलेक्ट्रॉन गेट ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट। When electron jump from lower energy level to higher energy level, it absorb the energy. अगर लोअर एनर्जी लेवल के शेल एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे एल शेल में, और एल शेल में इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी तो एम शेल में वो मूव करेगा। When electron returns from higher energy level to lower energy level, that means what, it emits the energy. अगर इलेक्ट्रॉन एम शेल में से एल शेल में आता है तो वो क्या करेगा, अपनी एनर्जी क्या करेगा, इमिट करेगा। दैट मीन्स व्हाट, रिलीज करेगा, एनर्जी अपनी रिलीज करेगा एम शेल में से एल शेल में आने के लिए, एल में से के शेल में आने के लिए फर्दर वो एनर्जी रिलीज करेगा। दैट मीन्स व्हाट, इलेक्ट्रॉन लोअर शेल में से हायर शेल में आते हैं तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे तो ही आएंगे, और हायर शेल में से लोअर शेल में आएंगे तो वो एनर्जी क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू हिज थियोरी, ये सभी जो KLMN शेल दिए, डिज़ाइन किए वो एनर्जी लेवल में, और उन्होंने क्या बोला, एनर्जी जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में के शेल की एनर्जी एल शेल से कम है, एल की एम शेल से एनर्जी कम है, एम की एन शेल से एनर्जी कम है। या तो ऐसे भी बोला जाए E1, E2, E3 एज वेल एज E4, अलग अलग एनर्जी उन्होंने बताई। तो E1 की एनर्जी स्मॉलर देन द E2, E2 की एनर्जी स्मॉलर देन द E3, एंड अगर पीछे से फोर्थ शेल आल्सो इफ वी शो, देन वी आर शोइंग हियर एन शेल। So these are this theory. Now distribution of the electron in his orbit. So let us see how he distribute these type of electron. So distribution done by this, according to Bohr's model, electron occupy certain stable orbit or shell. Each shell has a definite energy. जैसे हम लोगों ने बताया KLMN शेल, सभी में 4 शेल बताएं, और एक शेल का नंबर भी उन्होंने दिया 1, 2, 3, 4 शेल। तो these orbit or shell are represented by the letter KLMN शेल, और उन शेल को नंबरिंग दिया गया, फर्स्ट शेल को नंबर 1, सेकंड शेल को नंबर L जो सेकंड शेल है, M जो थर्ड शेल है, और N क्या है, फोर्थ शेल है। शेल का मतलब ऑर्बिट या एनर्जी लेवल। दैट मीन्स व्हाट, द सर्कुलर पाथ वेयर द इलेक्ट्रॉन दे मूव अराउंड द न्यूक्लियस, उसको क्या बोला गया, शेल बोला गया। नाउ द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द शेल
is given by the formula 2n square, where n is what? Orbit number or shell number. तो उनकी थियोरी में क्या बोला गया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ 2n स्क्वायर. अगर फर्स्ट शेल है तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इफ वी पुट दैट n मीन्स व्हाट? नंबर ऑफ शेल. तो फर्स्ट शेल है तो अगर हम लोग 1n पुट करते हैं, नंबर ऑफ शेल 1 है, तो उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 इंटू 1 स्क्वायर इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन. तो के शेल में फर्स्ट शेल क्या है? के शेल है, सेकंड शेल एल शेल है, थर्ड शेल एम शेल है एंड फोर्थ शेल कौन सा है? एन शेल है. तो फर्स्ट शेल के शेल में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई हो सकते हैं? 2 ही हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं. अगर 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो किस में चले जाएंगे? सेकंड शेल में. मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई हो सकते हैं के शेल में. अगर सेकंड शेल होता है देन वंस अगेन 2n स्क्वायर फॉर्मूला. सो 2 इंटू n क्या है? सेकंड शेल है तो सेकंड का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 4 2 जा 8. सो 8 इलेक्ट्रॉन कैन बी ऑक्यूपाइड इन सेकंड शेल. थर्ड शेल है तो थर्ड शेल में 2n स्क्वायर फॉर्मूला. सो 2 इंटू 3 नंबर ऑफ शेल, 3 स्क्वायर करेंगे तो 9, 9 2 जा 18. सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड अप टू थर्ड शेल इज व्हाट? 18. फोर्थ शेल, अगर फोर्थ ऑर्बिट बोला जाए तो 4 नंबर ऑफ 4 का स्क्वायर किया जाए तो 16 होगा, 16 2 जा 32. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई इन फोर्थ शेल इज व्हाट? 32 and so on. Likewise, this way 2n square based on that he had given the filling up number of electron in different shape. The maximum number of electron which can be accommodated in the outer shell orbit is what? 8, not more than that. According to Niels Bohr कि maximum number of electron जो occupy होंगे उसमें कितने होंगे? 8 होंगे, 8 से ज़्यादा नहीं. The orbit or the shell is filled in the stepwise manner. अगर एक शेल फिल होता है तो ही दूसरे में इलेक्ट्रॉन जाएंगे. अकॉर्डिंग टू दैट थियरी स्टेप वाइज मैनर से ही इलेक्ट्रॉन फिल होंगे. फिलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज व्हाट? सिस्टमेटिकली एंड ग्रेजुअली स्टेप वाइज कैन बी डन. इलेक्ट्रॉन आर नॉट accommodated in given shell unless the inner shell are filled. तो दूसरे शेल में जब तक अंदर का शेल एम्प्टी है तो बाहर के शेल में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे. सो दिस ऑल दीज थिंग्स आर गिवन बाय द साइंटिस्ट नील्स बोर. तो नील्स बोर ने जो दिया, डिस्कवरी किया एटॉमिक मॉडल का, एंड ही गिवन द 2-dimensional picture. Actually nowadays we are saying that atomic model is what? A 3-dimensional structure, but some limitation can be observed in Bohr's atomic model. From that he gave that 2-dimensional picture. That means what? Electron revolving in a circular path according to his theory. But nowadays it is confirmed. It is confirmed that electron is what? Move in the 3-dimensional way. That means what? The structure of the atom is what? Spherical in nature, not in a circular nature. Then second drawback observed in his theory is what? He did not explain about the shape of the molecule or molecule, how this molecule are formed. He had given the information about the atom, atomic model के बारे में तो उन्होंने बताया, बट मॉलिक्यूल के बारे में शेप, मॉलिक्यूल का शेप क्या है, मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म होता है, ही कुड नॉट एक्सप्लेन अबाउट दैट थियरी. ही गेव दैट वेल डिफाइंड ऑर्बिट ऑन द बेसिस ऑफ लेटेस्ट एटॉमिक थियरी एंड प्रोबेबली द फाइंडिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर्टिकुलर स्पेस. तो कुछ हद तक उन्होंने जो इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट इन फिक्स्ड ऑर्बिट में बताया, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं वो भी बताया, काफ़ी कुछ इम्प्रूव किया. बट जो फाइनली मॉडल अभी nowadays you will learn in higher classes, that is the Sommerfeld improved by that theory, and quantum mechanic model जो बताया गया है that you will learn in higher classes. तो वो 3-dimensional model बताया गया है एटम का, स्पेरिकल शेप बताया गया है, बट नील्स बोर ने जो बताया था वो सर्कुलर मॉडल था.
So up to here we have discussed about that electron, proton, neutron, as well as different scientists. They given different idea about the different model. So J.J. Thomson, let us revise about that. जॉन जोसेफ थॉमसन, सर जॉन जोसेफ थॉमसन ने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कवरी किया, बराबर। डिस्चार्ज ट्यूब लेके एक्सपेरिमेंट लेके ही डिस्कवर्ड कैथोड रे। जे थॉमसन ने कैथोड रे डिस्कवर किया। उसके बाद में गोल्डस्टीन ने क्या डिस्कवर किया, ही डिस्कवर द प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, जिनका नाम कैनल रे या एनोड रे भी दिया गया। उनके बाद में आए रुथरफोर्ड ने क्या डिस्कवर किया, हैवी न्यूक्लियस एट द सेंटर। एटम में जो न्यूक्लियस है वो सेंट्रल पोर्शन में है और हैवी न्यूक्लियस है जिसका मास ज़्यादा है। ऑलमोस्ट एटम का मास कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट है, सेंट्रल पोर्शन में। और उन्होंने क्या डिस्कवर किया, न्यूक्लियस के बारे में डिस्कवरी किया। एंड नील्स बोर ने सिस्टमेटिक अरेंजमेंट दिया किसका, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन की सिस्टमेटिक अरेंजमेंट वेयर द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ, तो वो नील्स बोर ने बताया। और इलेक्ट्रॉन का पाथ जो फिक्स पाथ है जहाँ पे वो मूव किया करते हैं इलेक्ट्रॉन, तो वो सर्कुलर पाथ बताया या ऑर्बिट नाम दिया, एज वेल एज एनर्जी लेवल बताया। और इलेक्ट्रॉन जो है वो 2n² के नंबर में दे मूव करते हैं। दैट मीन्स व्हाट एंड वेयर n इज व्हाट एंड नंबर ऑफ शेल। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई भी शेल में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई होते हैं, दैट गिव्स बेस्ड ऑन दी 2n² फॉर्मूला। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एज वेल एज न्यूट्रॉन। देन नील्स बोर, फाइनली सर्कुलर ऑर्बिट थियरी। नील्स बोर का जो सक्सेस मॉडल था, अब जो 9th क्लास में आपका है, तो वो सर्कुलर ऑर्बिट एटॉमिक थियरी का मॉडल जो बताया गया बेस्ड ऑन डिफरेंट ऑर्बिट के एलिमेंट शेल में, तो वो आपको याद रखने का है। बिकॉज समटाइम्स वी विल आस्क यू अबाउट द ड्रॉ द एटॉमिक मॉडल बेस्ड ऑन नील्स बोर से, यू हैव टू ड्रॉ दिस एटॉमिक मॉडल। आपको क्या शो करने का है, के एलिमेंट शेल। And next period we will learn about the how these electrons they systematically filled in different shell. We will learn in next period. Okay, thank you.